यहाँ पे Yes, हमने sir. क्या किया Yes, sir. कि जो ओरिजिनल टाइप मैट्रिक्स था हमारा, उसमें हमारे नोट्स के जगह पे क्या था, लूप्स थे हमारे, बिकॉज दिस इज अ टाइसेट मैट्रिक्स, नॉट अ simple incidence matrix or that particular, right? So these are the loops and these are the branches. So this can be जो vertical था वो हमने horizontal में consider किया उसको, because it's a rule to write the transpose matrix, so that we have taken like this. And to get this link current transformation equation, it is the need to take the transpose of the given Tysset matrix. तो ये B of B transpose हमें मिल गया है यहाँ पे, right? So again now what we want, IB को किस तरह से लिखेंगे? IB is nothing but the branch current vector. This IB is nothing but the branch current vector. Branch current vector, right? So this is a branch current vector. So how we can write this? So IB is nothing but, and we know that the branch currents, the how many branches are there? 6 branches. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So they are the I1, I2, I3, I4, I5, and I6. So these are the branch current vectors. So this can be written like this. Okay, branch current vectors, right? And the loop current vectors, IL is nothing but the loop current vector. These are the loop current vector. So loop current vector can be represented by IL, and that will be equals to I1, I2. How many loops are there? We are having 3 loops. So I1, I2, and I3. These are the 3 loops that we have with that tie set, right? So if we have to write this in combined, so what we can write, the link current transformation equation. Therefore I am writing here. Therefore the link current transformation equation IB is equals to B transpose into IL. So we are having all these values. So IB is nothing but this one, I1, I2, I3, I4, I5, and I6. So these are the branch current vectors that will be equals to transpose. So this becomes here, sorry, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 minus 1, 1, 1 minus 1, 0, and last one is minus 1, 0, 0. ये यहाँ पे लिखा मैंने. And IL is nothing but this one. That is of what? I1, I2, I3. So this is this is our link current transformation equation, like this. Have you understood this part? Guys, have you understood this part? Link current transformation equation, right? So this Yes, is, sir. now from this we have to identify the branch currents. अब इससे मुझे ब्रांच करंट आइडेंटिफाई करने हैं. ब्रांच करंट यानी ये वैल्यूज I1 है ना. Therefore we have to take that branch current values from this equation, right? So therefore the branch currents are the branch currents are, now see that first branch current is I1. We know that I1 is the first branch current, because we know that we are having 6 branches. So I1 to I6 are the branch currents, and we should know that values. So I1 is equals to, now see the guy, see guys here, I1 का वैल्यू देखिए, ये हमारे लूप्स है, I1, I2 and I3, जैसे यहाँ पे हमने लिए है. तो I1 का वैल्यू क्या है हमारा, I1 है ना. I1 is equals to I1 मैं बोल सकता हूँ, because they are coincides. अगर आपने देखा तो लूप का डायरेक्शन और ब्रांच करंट का डायरेक्शन कोइंसाइड हो रहा है ना. हमने कल डिस्कशन किया था कोइंसाइड के बारे में. रिकॉल हो रहा है क्या कुछ? कोइंसाइड के बारे में हमने डिस्कशन किया था कि ये वैल्यू हम पॉजिटिव कब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वो दोनों कोइंसाइड है. मैं यहाँ पे उसको फिर से एक बार ड्रॉ करता हूँ, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. उसके अलावा वो समझ में नहीं आएगा. सो विल गो विद दैट. ठीक है. और हमारे ब्रांचेस थे, सॉरी नोड्स थे A B C D,
और ब्रांचेस थे हमारे 1 2, दिस वन इज 3, देन देयर आफ्टर 4 5 एंड 6। फिर हमने क्या किया था, लिंक को ऐड करके लूप्स आइडेंटिफाई किए थे I1 I2 and I3. So if you see carefully, this is the I1 branch current, here it is I2 and so on, I3 I4 I5 and I6. Is that clear guys? First of all, is that clear? This diagram मैंने फिर से ड्रॉ किया है इसको. Now see here, I1, this is the I1 branch current, that will be equals to the direction of the loop, that is of what, I1. So here it is 1, यहाँ पे देखिए हमारा 1 है. Is it clear to you? इसको relate करके देखिए. I1 is the branch current direction, I1, this capital I1 is the loop current direction, right? And they are coincide with each other, दोनों एक दूसरे से coincide हो रहे हैं. That means we are getting 1 over here and that is positive, right? This is plus 1, right? So this is for I1. So can I write like this, I1 is equals to I1, small I1 is equals to capital I1. Is it clear to you? Yes, sir. Right? So Yes, I1 sir. is equals to, here I am written I1. Now see here I2. देखिए अब I2 के जगह पे देखिए क्या है, I2 is equals to, I2 is nothing but simply I2. देखिए I2, ये I2 है हमारा, इसका डायरेक्शन लूप का डायरेक्शन सेम है. So I2 is here, it is I2. So I can write I2 over here, right? Now as far as the I3 is concerned, again you see that the direction is same, loop direction and branch current direction, ये I3 है हमारा. So I3 का डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन सेम है. So I3 is also I3 here, this one is I3. So I can write I3 over here. Now when we come for the I4, you found the difference now. When we come to I4, you found that the I4, right, the I4 is here I2 minus I3. See here, I4 is nothing but I2 minus I3. क्यों minus क्यों I3? क्योंकि ये opposite direction है और ये इसके direction में same है. That's why this becomes I2 minus I3. I2 minus I3. Is that clear, guys? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Right. So I2 minus, Yes, sir. here it is. यहाँ देख सकते हो I2 minus I3. So this way we can write. Okay. Now या फिर हम ऐसे कंसीडर करते हैं इसको I2 minus I3. ये देखिए है ना, ये वाला ये यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ गया इसलिए दिख नहीं रहा प्रॉपर्ली. ये 1 और -1 है तो I2 minus I3. Now as far as I5 is concerned, guys, I5 is concerned, you can write here it is I5. कहाँ पे I5? अब देखिए ये हमारा 5 है तो I5 अगर मुझे चाहिए तो ये किन दो लूप के लिए कॉमन है, I1 और I2. तो I1 का डायरेक्शन सेम है जिसका जैसे I5 का है, सॉरी 5 का है, और I2 का डायरेक्शन इसके अपोजिट हो रहा है. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो क्या आएगा यहाँ पे बताइए, I5 इज इक्वल टू क्या आएगा? I1 minus I2. Very good. I1 minus I2. That will be get here. I1 minus I2. So that is the I5. And as far as I6 is concerned, what we are getting? Minus I1. It becomes minus I1. Why it becomes minus I1? Minus why? Because the loop current direction is opposite to that of the branch current direction. क्योंकि ये इसके opposite में है, right? That's why this becomes minus. And the branch current I6 is related with the loop I1. That's why only it will consider the I1 loop. That's why it becomes minus I1. So have you understood this part? Tell me now. If any difficulty, you can ask. Is there any difficulty, guys? सर I4 का समझा नहीं. ये वाला. ओके. इसको देखते हैं फिर से. ये देखिए यहाँ पे ये डायग्राम में देखिए आपको ये I4 ये 4 दिख रहा है, ब्रांच 4. Yes, sir. Right? See this branch 4 is common for I2 and I3. ये देखिए यहाँ पे I2 लूप में भी ब्रांच 4 है, I3 लूप में भी ब्रांच 4 है. लेकिन अगर हम I3 के बारे में बात करते हैं तो देखिए ये I3 जो है कैपिटल I3, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप करंट, है ना, ये लूप करंट का डायरेक्शन है. और ये जो I3 है हमारा ये ब्रांच करंट है. तो ये दोनों का डायरेक्शन सेम है. दैट्स व्हाई ये दोनों का डायरेक्शन सेम है. लेकिन जब हम ये यहाँ से टर्न हो रहा है यहाँ से तो इसका डायरेक्शन उल्टा हो रहा है.
इसके अपोजिट हो रहा है, तो अपोजिट हो रहा है इसका मतलब ये I3 जो है ये माइनस में माइनस कंसीडर करेंगे हमने, दैट्स व्हाई वी हैव टेकन माइनस I3. बट एज फार एज I2 इज कंसर्न्ड, I2 का जो लूप जो है ना हमारा ये I2, उसका करंट जो है 4 डायरेक्शन, दैट्स व्हाई दिस बिकम्स प्लस. I2 और I3 में कॉमन होने की वजह से, और इसका डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग है और इसका डायरेक्शन इसके अपोजिट है I3. What we are going to consider I2 minus I3. You see here I2 minus I3 because this is I1, this is I2, this is I3, this is I4, this is I5 and this is I6. Now I1 simply I1 था इसलिए हमने ये लिखा, I2 simply I2 था so we have written this, I3 simply I3 था तो वो हमने लिखा. But when we came to I4 we found that it is the difference between I2 and I2 minus I3, that's why we have taken I2 minus I3, this one I2 minus I3, so that we have taken that difference. Same way I5 becomes simple I1 minus I2, I1 minus I2, and I6 is simple minus I1. Is that clear now? Yes, sir. Anyone else, any difficulty? Can we proceed further? Yes, sir. Okay. So this is all about the tie-set matrix and the link current transformation equation. Now we will solve one example. Simple example है, उसको solve करते हैं और फिर हम next topic पे जाते हैं, ठीक है? You can solve with me. I am drawing one diagram over here और फिर वो प्रॉब्लम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? पहले तो मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और सिंपल तरीके से उसको सॉल्व करेंगे. अभी जिसमें जैसे हमने यहाँ पे इंसिडेंस मैट्रिक्स, फिर टाइसेट मैट्रिक्स, फिर ब्रांच करंट्स, लूप करंट्स एंड ऑल, वो जो भी किया है ना वो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे या निकालेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ड्रॉइंग द डायग्राम. You can draw with me parallelly, no problem. ठीक है? So this is our diagram. So node A, node B, node C, node D, node E, node F. Along with that, here it is node G, H, I, and J. So this kind of nodes are given, but we have to simplify this. हम ऐसे डायरेक्टली नहीं लेंगे उसको, हमको उसको सिंप्लीफाई करना है. This is a 15 volt voltage source. This is a 5 ohm resistance. This is a 10 millihenry inductor. Here it is the 25 ohm resistance. Here it is 15 millihenry inductor. This is a current source of 5 ampere. This is the capacitor of 5 microfarad. This is a resistance of 100 ohms. Listen what we have to do. What we have to do here for this given electrical network, we have to draw the topological graph. एक तो हमें graph draw करना है, right? Then we have to write its incidence matrix. Then the incidence matrix, इसको मैं सिर्फ simply A लिखता हूँ. A is for incidence matrix. Then we have to write the tie set
शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे टाइसेट मैट्रिक्स एंड इक्वेशन, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, एंड ब्रांच करंट्स एज वेल एज ब्रांच करंट, जो अभी हमने लास्ट स्क्रीन पे जो देखा था ना, I1, I2, I3, I4, I5, I6, दैट आर द ब्रांच करंट्स. So branch currents also we have to identify. Have you understood the problem? First tell me, हमें करना क्या है? For the given electrical network, topological graph, यानी इस नेटवर्क से मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, फिर इंसिडेंस मैट्रिक्स लिखना है, करना है, और सबसे लास्ट भी आइडेंटिफाई करनी है. So have you understood the problem? Yes, sir. Yes, sir. Guys, have you understood the problem? Okay, solve. अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं. तो सबसे पहला तो है मुझे कि ये सॉल्व करने, इस मेथड में सॉल्व करने के लिए मेरा रूल क्या है? आई हैव टू शॉर्ट सर्किट द वोल्टेज सोर्स एंड ओपन सर्किट द करंट सोर्स. एज वी नो, हमें क्या करना पड़ेगा? वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा और करंट सोर्स को ओपन सर्किट करना पड़ेगा, राइट? देन द पॉइंट्स वी आर इलेक्ट्रिकली एट सेम पोटेंशियल. अगर इसमें ये करने के बाद जो पॉइंट्स एक ही पोटेंशियल पे है, वी हैव टू कंबाइन दैट पॉइंट्स एंड टू फॉर्म अ सिंगल नोड. फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको ओपन सर्किट करता हूँ तो सी और डी एक ही गाइस, मैं इसको रिमूव करता हूँ पहले तो, यानी जो फर्स्ट मेरा जो रूल है वो यहाँ पे अप्लाई करता हूँ कि अगर वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करूंगा, और अगर करंट सोर्स, so accordingly the circuit is being like this now. Are you getting what, guys? Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो फर्स्ट मेथड क्या था? फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? सर्किट करो, करंट सोर्स है तो उसको ओपन सर्किट करो, और उसके बाद में जो सेम पोटेंशियल पे पॉइंट्स है या नोड्स है उनको कंबाइन करो. तो देखिए, जैसे मैंने करंट सोर्स यहाँ से रिमूव किया और डी एक ही पोटेंशियल पे है, तो ये दो मिला के मैं एक नोड ले सकता हूँ. वैसे ही जैसे मैंने इसको शॉर्ट सर्किट किया वोल्टेज सोर्स को, तो नोड ए, नोड एच और नोड जी, दे आर ऑल आर हैविंग एट द सेम पोटेंशियल. तो ये सब मिला के मैं एक ही नोड कंसीडर कर सकता हूँ. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल? Yes, sir. राइट. तो क्या करेंगे अभी, इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके. ओके. तो मैं डॉटम नोड से ले जाता हूँ जिसमें मेरा नोड ए भी आएगा. यहाँ पे डॉटम नोड में मेरा कौन से नोड आएंगे, कौन से कंबाइन हो रहे हैं? ए, जे, आई, एच और जी. तो मैं यहाँ लिखता हूँ ए, जे, आई, एच और जी. ये सभी नोड मिला के मेरा एक ही नोड हुआ. ठीक है. अब इस नोड में और एक मैं बी नोड यहाँ पे कंसिडर करता हूँ. दिस वन बिकम्स द बी नोड. ये मेरा बी नोड है. अब इसमें और ए और बी में जैसे यहाँ पे मेरा, या फिर ये पर्टिकुलर में 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो एक ब्रांच में यहाँ पे ऐड करता हूँ. ठीक है. ओके. आफ्टरवर्ड्स दिस इज अवर नोड बी सपोज. अब नोड सी है मेरे पास, नोड सी. अब सी और डी एक ही पोटेंशियल पे है, तो मैं दोनों मिला के एक ही लिखूंगा यहाँ पे. उसमें मेरा एक ब्रांच है ना. देन देयर आफ्टर सी डी और डी और ई में मेरा एक ब्रांच है. तो मैं यहाँ पे वन ब्रांच इज देयर ऑफ 15 मिली हेनरी. तो मैं ये यहाँ पे कंसिडर करता हूँ जिसका नाम है एफ, और उसके बीच में भी मेरा एक ब्रांच है. एंड देन देयर आफ्टर द अनदर इज एफ इन ऑल दीज नोड्स. तो ये यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे कंसिडर किया. दिस इज अवर पर्टिकुलर. एंड एक और ब्रांच बचे, दो और ब्रांच बचे हुए, सी और एच, और दूसरा है बी. तो बी और आई मेरा ये बनता है यहाँ पे. सो दिस इज अवर पर्टिकुलर ग्राफ. लेकिन ये रिड्यूस्ड ग्राफ नहीं है, इसको और हम रिड्यूस कर सकते हैं. कैसे करते हैं हम देखेंगे. लेकिन ये
पहले बताइए मुझे. Have you understood this? Are you Yes, getting this or not? Okay. Now guys, what we have to do, we have to combine the simple nodes and arbitrarily selecting the branch current direction, उसको combine करने हैं. और arbitrarily डायरेक्शन, देखिए यहाँ पे कहीं पे भी डायरेक्शन शो नहीं किए हैं, तो वो मुझे एक सिंपल आर्बिट्ररी डायरेक्शन सिलेक्ट करनी है. वो हम पे करता है, डिपेंड करता है कि हमको वी हैव टू कंबाइनिंग द सिंपल नोड्स एंड आर्बिट्ररी सिलेक्टिंग. सिंप्लीफाइड बना सकते हैं हम, जिसमें ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम कंसीडर कर सकते हैं. तो पहले तो मैं instead of taking the nodes B, C, D, E and all this, I am going to take only 3 nodes and which is having the names. यहाँ पे मैं कुछ नाम दे रहा हूँ, जैसे X is one of the node, then Y is another node and third node that I have given. Now see guys, ये फर्स्ट पार्ट जो है इतना वाला, ये मैं एज इट इज यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ. ओके. नाउ इसको अगर मैं जो सिंपल नोड जो है जिसको मैंने कंबाइन किया है, जिसमें हमारा सी डी ई और एफ अगर है, तो यहाँ पे जो है ये इतना पार्ट जो है ये मैं सिंपल एक ही इसमें ड्रॉ करता हूँ. ठीक है. और बाकी जो भी है वो एज इट इज रख रहा हूँ. दिस वन एंड दिस वन. नाउ सी, अब इसको मैंने कुछ डायरेक्शंस दे दिए, आर्बिट्ररी डायरेक्शंस. तो सपोज ब्रांच 1, ब्रांच 2, दिस इज ब्रांच 3, ब्रांच 4 एंड ब्रांच 5. सो दिस इज अवर reduced oriented graph, or what we can say by combining the nodes. ये सभी जो नोड्स है, सिंपल नोड्स को मैंने कंबाइन किया और एक आर्बिट्ररी डायरेक्शन ब्रांच करंट की. देन वी गॉट दिस. जैसे यहाँ पे इसको मैं फिगर ए कंसीडर करता हूँ, ये फिगर सी मुझे मिलता है यहाँ पे, राइट. सो द सिंप्लीफाइड इट कंसिस्ट ऑफ 3 नोड्स Z. Then it is having the 5 branches 1, 2, 3, 4 and complete incidence matrix. अब इसका मैं incidence matrix लिख सकता हूँ. So इसका incidence matrix मैं यहाँ पे लिखता हूँ. Therefore A is equals to, A is nothing but the incidence matrix. तो पहला हमारा पार्ट हो गया कि ग्राफ हमने ड्रॉ किया. Now we are going to draw the incidence matrix A. So A becomes what guys? अब मुझे पता है कि क्या ड्रॉ करते हैं हम, नोड वर्सेस ब्रांचेस. तो ये हमारे nodes are this side, right? So how many nodes that we have? We have X, Y and Z. ठीक है. तो ये हमारे 3 nodes हो गए. And how many branch? 2, 3, 4 and 5. So accordingly we can so as far as the first branch is concerned, it is connected in between X and Y, and this branch current leave the node X, so this becomes 1, है ना. ये 1 हो जाएगा. इसका मतलब ये -1 आएगा. Z तो है ही नहीं, तो 0. Are you getting what I am doing here, guys? Are you getting what I am doing Yes, here? sir. yes, sir. Okay. Now see the second branch. Second branch is in between Y and Z. So leaving Y and entering into the Z. Leaving Y means 1. Entering into the Z means -1. And X is not being there, so 0. Then third branch, leaving X, entering Z. Leaving X का मतलब है ये 1. Entering Z मतलब ये -1 और ये 0. Are you getting? Now branch number 4, leaving Y, so this becomes 1. Entering Z means -1 and no X is there, so 0. And branch 5, entering X, so -1, leaving Z +1, Y is not there, so this is the transpose matrix. Are you getting? Now we have to go for the tie-set matrix, but before going to the tie-set matrix, we know one thing also, and that is about A1. A1 is what, guys?
रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो जेड जो है हमारा वो है, अगर ये रो मैं रिमूव करता हूँ तो जो भी मुझे मिलता है वो होता है हमारा रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स. सो आई गॉट दिस 1 -1 एंड -1 1 0 1 0. दिस इज अवर रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स. यहाँ पे हमने क्या किया, वी हैव चूज रेफरेंस और द डॉटम नोड. हमने ये नोड Z को रेफरेंस नोड या फिर डॉटम नोड करके कंसीडर किया, राइट. फॉर राइटिंग द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, और वी कैन ऑब्टेन A1 बाय डिलीटिंग द लास्ट रो एलिमेंट इन A. अब ये लास्ट रो एलिमेंट जो है हमारा A का, अगर मैं उसको डिलीट कर देता हूँ तो जो भी मुझे मिलता है ना वो होता है मेरा रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स, राइट. सो दिस इज नथिंग बट द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स. नाउ सी गाइस, as far as the Tysett matrix is concerned, अब मुझे क्या करना है, Tysett matrix को लिखना है. नेक्स्ट वन जो टारगेट है मेरा Tysett matrix. So for writing the Tysett matrix, we can consider this diagram, figure C. Tysett matrix के लिए हम इसको कंसिडर करेंगे, फिगर C को. तो इसमें मुझे बताइए कि how many number of nodes are there, n की वैल्यू कितनी है, how many nodes, 3. 3 branches, sorry 3 nodes. How many branches, 5. we are having 5 branches, right. Now tell me how many number of branches, 3 branches or twigs. How many number of twigs? मुझे Tysett matrix चाहिए, twigs पता होना चाहिए ना. Twigs के लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, n is the formula ना. Twigs के लिए फॉर्मूला है ना हमारा n-1. So number of node is 3. So 3 minus b minus n-1. याद आ रहा है कुछ कि नहीं, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So this becomes 5 minus 2, that will be equals to 3. So link currents are 3. इसका मतलब ये हुआ, ये सिंपल है, यानी ये एक बार अगर ये कैलकुलेट करता हूँ तो मैं तो बाय डिफॉल्ट बता सकता हूँ, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रांचेस 5 है. सो 5 माइनस द ट्विग्स आर नथिंग बट द लिंक्स, यानी दो ट्विग्स होंगे हमारे हर ट्री में, तो 3 लिंक्स होने चाहिए. आर यू गेटिंग दैट पॉइंट? Am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. Right? अब क्या करेंगे, मुझे तो Tysett मैट्रिक्स चाहिए. Tysett मैट्रिक्स के लिए मुझे कोई तो भी एक आर्बिटरी ट्री कंसीडर करना पड़ेगा. तो सबसे पहले मैं एक ट्री कंसीडर करता हूँ आर्बिटरी लेके. तो फॉर एग्जांपल दिस आर आवर नोड्स, ये हमारे 3 नोड्स है, ऐसे कंसीडर करके चलता हूँ. और जिसमें मैंने 2 ट्विग्स को कंसीडर किया, एक तो ये और एक ये, यानी ये है मेरा नंबर 4 और दूसरा है मेरा नंबर 5. ओके. ये डायरेक्शन उल्टा है गाइस, ये डायरेक्शन ऐसे, ठीक है. सो दिस इज अवर 5. तो ये 2 मैंने ले लिए. नाउ वी नो दैट number of twigs are 2 and accordingly the number of link currents are 3. तो 3 link currents यानी करने के लिए मुझे 3 branches, link branches उसको ऐड करना पड़ेगा. तो पहला तो है मेरा ये वाला है ना, this one is my first link, so this is number 1. This is my second link, because we know that we want 3 links. तो ये हो गया मेरा second link, तो इसका नंबर है 2. और ये हो गया मेरा third link, है ना. as far as the rule is concerned or the formula is concerned, this is our third, so this is our third link, right. तो ये सब कंसीडर करने का I got 3 loops. इसको मैं थोड़ा सा फिर से ड्रॉ करता हूँ प्रॉपरली, ये थोड़ा अच्छी तरह से ड्रॉ करते हैं. ताकि यहाँ पे अच्छी तरह से लूप हम उसको शो कर सके, ठीक है. तो दिस इज 3. नाउ वी गॉट 3 लूप्स. तो पहला लूप तो हो गया मेरा ये ब्रांच करंट के साथ, लिंक करंट के साथ, सॉरी ये लूप करंट कोइंसाइड होता है लिंक करंट के साथ. दूसरा लूप है मेरा ये वाला, जो फिर से कोइंसाइड करता है लिंक करंट के साथ. और तीसरा लिंक है मेरा ये वाला,
दिस वन, ये डायरेक्शन, ठीक है। तो ये है मेरा I3, तो ये भी कोइंसाइड करता है कि ये नहीं, ये कंडीशन है हमारा कि ये कोइंसाइड होने चाहिए एट द मोस्ट, जो भी हमारा लिंक डायरेक्शन है उस लिंक के डायरेक्शन से ये कोइंसाइड होना चाहिए, राइट। So this is all about the our tree, right? So what we did here, in this tree it consists of two branches, 4 and 5. 4 and 5, these are the two branches shown with the solid lines, and the link branches, that is of what, shown with the dash lines, 1, 2 and 3, right? So the tacit matrix or the fundamental loop matrix को कैसे लिखेंगे, इससे हम tacit matrix को लिखना है तो मुझे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा B से, जिसको हम फंडामेंटल लूप मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं और tacit मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि कैसे लिखते हैं इसको? हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, डू यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस? No, sir. So tell me now the fundamental loop matrix or the tacit matrix को कैसे लिखेंगे? यहाँ पे आएंगे हमारे लूप्स और इधर जाएंगे हमारे ब्रांचेस, है ना। ये हमारा फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर ऐसे है ना हमारा, दिस इज अवर स्ट्रक्चर। तो हमारे लूप्स कितने हैं? 3 लूप्स है। सो I1, I2 एंड I3, एंड हाउ many branches that is? So we are having 5 branches, 1, 2, 3, 5. So now tell me what kind of equations that will we get? बताइए जरा अभी, यूनिट वैल्यूज बताइए मुझे। ब्रांच, what we are getting? लूप को देखिए ना, यहाँ पे लूप को, लूप देखिए I1, ये है हमारा I1। इसके पहले जो हमने ड्रॉ किया था उसको थोड़ा सा सामने लाइए। 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1। अब देखिए ये जो हमारा फर्स्ट ब्रांच है ये कहाँ रिलेट है? I1 से रिलेट है। I2 और I3 है क्या? I2 और I3 में है क्या? है क्या यहाँ पे? Branch 1 is not related with I2 and I3, that this becomes 0. Now see here, branch 2, branch 2 को देखिए अभी, branch 2 का है हमारा यहाँ पे, it is only related with a loop 2, I2, है ना। तो ये 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0 आएगा। branch 3 is here, it is related with I3, तो ये 0, ये भी 0 और यहाँ पे 1 आएगा। Is it clear now? branch 4 is here, which is अब डायरेक्शंस यहाँ पे देखने पड़ेंगे, it is related with I1 और I2। तो I1 का और इसका डायरेक्शन जो है सेम है ना। I1 और ब्रांच 4 सेम डायरेक्शन है, और I2 का 1 -1 0 -1 और 0 आएगा। एंड व्हाट अबाउट द फिफ्थ ब्रांच? -1 0 माइनस -1 0 -1 -1 0 -1 नहीं, एक प्लस आना चाहिए ना। तो दोनों करंट सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। I3 ब्रांच नंबर 5 देखिए, ब्रांच नंबर 5 I1 जो है वो अपोजिट है, अपोजिट, यस I1 इज अपोजिट, और I3 इज आल्सो अपोजिट। नहीं, फिर ये डायरेक्शन गलत हो गया यहाँ पे हमारा, दिस डायरेक्शन इज समहाउ अपोजिट, क्योंकि एक इसमें एक -1 और एक +1 ऐसे आते हैं हमेशा, दोनों एक साथ नहीं आएंगे। तो मे बी द डायरेक्शन इज लाइक दिस। अगर ये डायरेक्शन ऐसे होता है तो ये सेम डायरेक्शन आता है I1 का, तो ये प्लस आ रहा है, दिस बिकम्स प्लस। I2 तो रिलेट ही नहीं करता, एंड I3 इज हैविंग द प्लस, या तो प्लस आ रहा है या तो माइनस आ रहा है ना। यस ये प्लस ही आ रहा है, दिस बिकम्स प्लस।
this becomes plus. So this is 1 0 1 0 1. So this is our transpose matrix. Now ये तो हो गया हमारा टाइसेट मैट्रिक्स, तो हो गया ट्रांसपोज नहीं, टाइसेट तो हो गया. नाउ वी वांट दिस लूप करंट इक्वेशन, है ना. लूप करंट इक्वेशन भी मुझे चाहिए, तो उसके लिए ये निकालने के लिए मुझे इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, है ना. टू ऑब्टेन द लिंक करंट इक्वेशन एंड ब्रांच करंट्स, द ट्रांसपोज ऑफ बी शुड बी कैलकुलेटेड. तो इसका मैं अगर ट्रांसपोज लेता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, बी ट्रांसपोज. यहाँ पे मिल रहा है बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू, फिर ये इस पैटर्न में आएगा -1 0, है ना. और फिर यहाँ आएगा 0 0 1 0 1. तो ये आ जाएगा मेरा, ये हो गया ट्रांसपोज. नाउ आई वांट दिस इक्वेशन, आई बी is equals to B transpose into loop currents IL. ये मुझे चाहिए, ठीक है. So I know this value IB, I1, I2, I3, I4, I5. 5 ब्रांचेस है ना मेरे पास. तो ये आ गया. ये यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला मैट्रिक्स आएगा मेरा, दिस वन बी ट्रांसपोज, है ना. तो ये हो गया मेरा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -1 0 and 1 0 1. So this is our transpose matrix. And IL is nothing but I1, I2 and I3. All three loops. तो ये मेरा हो गया IB. I got this also. Now I want branch currents. सेम वे यहाँ पे मैं ब्रांच करंट को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जैसे मैंने लास्ट किया था. I1 इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, I1 इज इक्वल टू I1 सिंपली I1, I2 इज इक्वल टू सिंपली I2, I3 इज इक्वल टू सिंपली I3 only, है ना. नाउ सी I4 I1 minus I2. This is then I4, and I5 is what, guys? I5 is I1 plus I3. I1 plus Is it clear? I1 plus I3. I1 plus I3. So this we have calculated. We have calculated graph, or we have drawn the graph. This one. Then we have drawn the Tysett matrix. Sorry, here it is. Incidence matrix first of all. Then from that incidence matrix, reduced incidence matrix. Then next one is Tysett matrix. Here it is. Then link current transformation equation. This one link current transformation equation. This one we got, and then thereafter finally we got the branch current. So this way we have solved this example. In this all, do you have any difficulty, so that we can discuss, or we will proceed? So figure C. Yeah, यहाँ पे ये क्वेश्चन आना ही जरूरी है. यहाँ पे हमने क्या किया, ये जो ओरिजिनल डायग्राम था उसको वहां से मुझे ये ग्राफ निकालने के लिए सबसे पहले जो रूल है, दैट वी हैव मेड वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट सर्किटेड एंड करंट सोर्सेज ओपन सर्किटेड. वो करने के बाद मैंने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन से नोड्स सेम इस पे है, क्या बोलते हैं हम उसको, व्हाट वी कैन से, यानी दोनों नोड्स अगर सेम लोकेशन में है, यानी दोनों का मीनिंग एक ही है, यहाँ पे भी उतना ही वोल्टेज मिल रहा है जितना यहाँ मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो वो सभी नोड्स को हमने क्या किया, कंबाइन किया, राइट. सेम पोटेंशियल अगर है तो, टू नोड्स हैविंग द सेम पोटेंशियल, देन वी हैव कंबाइंड दैट नोड्स. तो फॉर एग्जांपल उसकी वजह से हमें क्या मिला, नोड ए, नोड आई, सॉरी जे, आई, एच और जी, ये सभी एक ही पोटेंशियल पे है. तो मैंने उसको क्या किया, कंबाइन कर दिया पहले. तो आई हैव मेड इट कंबाइंड, राइट. यहाँ पे सी और डी एक ही पोटेंशियल पे है, तो उसको भी कंबाइन कर लिया. फिर इसका एक ग्राफ मैंने बना लिया. अब इस ग्राफ को भी हम और सिंप्लीफाइड कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग द सिंपल नोड्स, राइट. अब कुछ नोड्स को हमने क्या किया, कंबाइन कर लिया. फॉर एग्जांपल ये जो सी डी एक कॉमन नोड था, इसको ये जो नोड है इसके साथ, और ये एफ जो नोड है, ये इनको कंबाइन कर लिया. तो ये कंबाइन करने के बाद मुझे एक नोड मिला y, एक नोड मैंने कंसीडर किया x,
ये सब मिला के मैंने एक नोड कंसिडर किया Z, राइट. सो अकॉर्डिंगली आई हैव टेकन 3 सिंपल नोड्स एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शंस मैंने कंसिडर किया, आर्बिट्ररी डायरेक्शन. तो मुझे जो नोड जो ग्राफ मिला वो ग्राफ ये है. आप इस ग्राफ को लेके भी ये सब कर सकते हो, बट अगेन इट विल लेंदी प्रोसेस जो हो जाएंगी, थोड़ी सी लेंदी हो जाएंगी. इसलिए हमने क्या किया, उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया. यहाँ पे सिर्फ 3 नोड्स में उसको कंबाइन कर लिया, जबकि यहाँ पे मेरे पास कितने नोड्स थे, 1 2 3 4 और 5 की जगह मैंने सिर्फ क्या किया, 3 ही नोड्स लिए, जिसमें मैंने ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये, यानी इतना पार्ट जो है वो मैंने एज इट इज यहाँ पे रखा, राइट. और सिर्फ ये जो था C D E और F, इसको कंबाइन किया, इस नोड्स को मैंने कंबाइन किया एंड आई विल गेट दिस ओनली सिंगल ब्रांच, दैट इज अबाउट ब्रांच 2, एंड देन वी गॉट द फिगर C. और फिर हमने इसको प्रोसीड किया फर्दर. ठीक है. Yes, sir. Okay. So can we proceed further? Guys, I think time is Yes, over, sir. but we will just introduce the next topic and then we will. हेलो सर. Yes, yes. हेलो सर. हाँ बोलना सर लूप ब्रांच फिर से बताइए सर. लूप ब्रांच लूप ब्रांच ये वाला, नहीं ये ऊपर ये ऊपर पार्ट वाला लूप सर. ब्रांच कि ये वाला, ये लूप ब्रांच, ये ना. यस सर. I1 I2 I3 हाँ वाला. हाँ यही ना, ये लास्ट वाला, ये लास्ट वाला. यस सर. ओके. नाउ सी, ये जो है दिस इज अ ब्रांच करंट इक्वेशंस, ब्रांच करंट्स. तो ब्रांच करंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो आइडेंटिफाई करने के लिए मुझे ये जो इक्वेशंस है, लूप करंट इक्वेशंस, ये मुझे चाहिए, राइट. ब्रांच करंट इक्वेशन. तो ब्रांच करंट इक्वेशंस तो इससे मैंने लिख लिया, यानी IB आर नथिंग बट द ब्रांच करंट इक्वेशंस I1 I2 I3, क्योंकि जितने ब्रांचेस होते हैं उतने हमारे ब्रांच करंट्स होंगे. यानी जैसे फर्स्ट ब्रांच है तो ये हो गया मेरा I1, सेकंड ब्रांच है तो I2, थर्ड ब्रांच है तो I3, फोर्थ ब्रांच है तो I4, फिफ्थ ब्रांच है तो I5 और सिक्स ब्रांच है तो I6. तो ऐसे तो मैंने ये सब लिख लिए. तो दैट इज विल गॉट दिस वन. नाउ बी ट्रांसपोज तो मैंने इस ट्राइसेट मैट्रिक्स से बी ट्रांसपोज निकाल लिया था. सो आई विल गेट दिस आल्सो. एंड लूप करंट्स आर 3 loops that we have, I1 I2 and I3. तो 3 करंट्स हो गए, I1 I2 और I3. अब इस पे से मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है, इस पे से मुझे ये ब्रांच करंट्स इक्वेशंस को, ब्रांच करंट्स को आइडेंटिफाई करना है, ब्रांच करंट्स को. तो पहला ब्रांच करंट है मेरा I1. अब अगर I1 को मैं देखूं तो I1 जो है वो, ये I1 इसका डायरेक्शन और ये लूप का डायरेक्शन सेम है, दे आर कोइंसाइड, है ना, कोइंसाइड हो रहे दोनों. तो सिंपली हम क्या बोल सकते हैं कि I1 का वैल्यू क्या है, जो हमारा लूप करंट है. तो ये डायरेक्ट लिख सकते हैं हम. अब इस पे से अगर मैच करना है मुझे, तो देखो ये I1 जो है मेरा, ये सिंपली ये जो ट्रांसपोज किया मैंने, तो क्या किया हमने यहाँ पे I1 I2 और I3 को लिया है, यहाँ पे इसको सिर्फ वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल लिखा है, राइट. सो इन दैट केस ये I1 क्या हुआ मेरा, ये सिंपल फर्स्ट वैल्यू I1 जो यहाँ से अभी हमने डिस्कस किया कि इसका डायरेक्शन और लूप का डायरेक्शन कोइंसाइड हो रहा है, तो ये दोनों सेम ही है. सो I1 इज नथिंग बट सिंपल लूप करंट I1. तो ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया. बाकी तो I2 और I3 से रिलेट ही नहीं करता ना, ये फर्स्ट ब्रांच 2 से भी रिलेट नहीं करता, 3 से भी रिलेट नहीं करता, तो इसकी जरूरत ही नहीं थी हमें. वाइल कंसिडरिंग I2, यहाँ पे है हमारा I2 का डायरेक्शन, लूप I2 का डायरेक्शन और ब्रांच I2 का डायरेक्शन सेम ही है. यहाँ पे ये वाला दोनों का डायरेक्शन सेम है. इज दैट क्लियर, दोनों का डायरेक्शन सेम है. तो मुझे, मैं I2 डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैंने I3 लिखा है, ये I2 है. I2 आई कैन राइट डायरेक्टली, सो दिस बिकम्स I2. I1 और I3 से तो रिलेट ही नहीं करता, राइट. वाइल राइटिंग द I3, अगेन I3 का डायरेक्शन भी इसके डायरेक्शन से सेम ही है, ये भी कोइंसाइड हो रहा है थर्ड लिंक ब्रांच से. सो आई कैन डायरेक्टली राइट I3 ओवर हियर. तो यहाँ देखिए I1 I2 0 है, सिंपली I3 है मेरे पास, तो मैंने ये डायरेक्ट लिख लिया. वाइल राइटिंग I4 नाउ, I4 को लिखते वक्त मैंने ये देखा कि ये ब्रांच जो है वो कॉमन है I1 और I2 को. और फिर मैं देखा हूँ कि I1 का जो लूप डायरेक्शन है और I2 का लूप डायरेक्शन, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है. सो I1 माइनस I2, क्यों, क्योंकि I2 का डायरेक्शन ब्रांच 4 के डायरेक्शन से अपोजिट है और I1 का डायरेक्शन ब्रांच 4 के डायरेक्शन से कोइंसाइड हो रहा है. सो व्हाइल राइटिंग व्हाट वी कैन टेक I1 माइनस I2. तो ये यहाँ पे दिख रहा है हमें I1 माइनस I2, तो मैंने ये I1 माइनस I2 ले लिया, राइट. एंड व्हाइल राइटिंग फॉर द I5, अगेन यहाँ पे मेरा I5 है, ये वाला.
फिफ्थ ब्रांच कहाँ है, ये वाला फिफ्थ ब्रांच है। तो इसको कंसिडर करते वक्त I3 का भी डायरेक्शन वैसे ही है, I1 का भी डायरेक्शन वैसे ही है, और मेरे फिफ्थ ब्रांच का भी डायरेक्शन वैसे है, तीनों कोइंसाइड हो रहे दो तीनों एक दूसरे से, है ना। तो दैट आई एम राइटिंग I1 plus I3 over here. So this is I1 plus I3 and that is of what, I5. Is that clear? Yes, sir. Okay. So guys, in the next lecture we will see the cut set matrix. Next topic is the cut set matrix that we will see in the next lecture, because here we have no time right now. तो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम कि कट सेट मैट्रिक्स कैसे होता है, वो कैसे ड्रॉ किया जाता है, उसके इक्वेशंस कैसे होते हैं एंड ऑल, ठीक है। सो वी विल स्टॉप हियर। इफ यू स्टिल हैविंग एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम एट ऑल।